guys, in today's session we are going to discuss about the relative motion. Up to this lecture we discuss about the motion in a one dimension, motion in a two dimension, then after motion in a plane means projectile motion and so on. Okay, so that's the last chapter of the motion and quite important. Let's start with the first one. What is the relative motion? First question is what is the relative motion? If you consider that any object is moving, okay, you consider some of this example. Suppose you have one object A. If this object is moving with a 3 meter per second, you consider what is the speed of this object? 3 meter per second. And you are observed from the ground. Then you observe what do you observe? The speed of the object is 3 meter per second. Now you consider the same situation. Object B is moving with a 5 meter per second as shown in figure. And again you observe from the ground. What is this velocity? What is the speed of the B? 5 meter per second. But with respect to ground, whatever we are just right here, 3 meter per second or 5 meter per second, that is what the speed of A and B. Speed of A and B is with respect to ground. मतलब आप उसका observation कहाँ से कर रहे हैं? Ground से. If you are not observed from the ground, if you just observe the objects A from the B, then what happens? See, if you consider the same situation, then after that is consider t is equal to 0. The situation is shown in the figure at t is equal to 0 second. After 1 second, object 1 is reached somewhere here, and after 1 second, object B is reached somewhere here. Okay, means how much distance covered by the first object? 3 meter. How much distance covered by the second object? That is a 5 meter. Okay, if you consider the relative thing, means the motion of A, means velocity of A with respect to B, or the velocity of B with respect to A, then how much relative distance is covered? See, how much relative distance is covered? That's only 2 meter. If you observe the objects A from the ground, then 3 meter distance is covered. If you observe the objects B from the ground, then 5 meter distance is covered. But if you consider this relative concept, then with respect to A, B is covered 2 meter distance only. क्योंकि आप यहाँ पे काउंट करते हो तो फिर A ऑलरेडी 3 मीटर को काउंट किया है, तो फिर A के रिस्पेक्ट में B ने कितना डिस्टेंस कवर किया? ओनली 2 मीटर. ओके, सो दैट इज अ रिलेटिव थिंग. That is what actually relative thing. So in the means when we consider the relative motion between the two objects, we just consider some of this idea. We consider some equation based on this. Okay, we derive it later on, but we have some example for the relative motion, like observation of any bags which is placed inside the train from the platform. Okay, so let's we write some of this example of relative motion. Observation of bag put in a bus from inside or from ground. अगर आप इस एग्जाम्पल के लेते हो, चलो, तो फिर अगर आप बस के अंदर पड़ा हुआ जो बैग है उसको अंदर से ही ऑब्जर्व करते हो तो आपको क्या लगेगा? वो रेस्ट पे है. लेकिन आप ग्राउंड से ऑब्जर्व करते हो तो क्या करेगा? आप बैग से मूविंग है. आप ऐसा बोल सकते हो यहाँ पे, मतलब कि जो बैग है वो अंदर से ऑब्जर्व करो, मतलब बस इन फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द बस, देन आपको क्या लगेगा? दोस बैग इज एट रेस्ट. बट आप उसको एक ग्राउंड से ऑब्जर्व करते हो तो फिर आपको क्या लगेगा? वो मूविंग है. तो आप कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पे रिलेटिव कंसेप्ट आता है. ठीक है, सो दिस वन, व्हाट इज द फर्स्ट कंसेप्ट? फ्रॉम वेयर you observe the object. That is our first question. From where you observe the object, and this position, this is called a reference frame. So whenever you think about the relative motion, first you choose the reference frame. Okay, and we already discussed in a previous session about reference frame. What is the meaning of reference frame? From where you observe the objects. Okay, so whenever we just count, whenever this apply the concept of relative motion, first we decide a reference frame and then after we apply some of this equation. Okay, let's we start with the first one. Now this case is what? How to solve the problem.
in this case of relative motion. So let's we derive some relations. So you consider first one is a vector method. We have a two method, vector and scalar. So first we discuss about the vector method. Let's see. Suppose that is x-axis and here it is a origin 0 0. Objects A is somewhere here, that is object A, and objects B is somewhere here. With respect to origin, place of A is considered as a xa. With respect to origin, the position of B is considered as a xb. But this one is a position of B with respect to A. This distance is what? Position of B with respect to A. ओके, A से आपने B का पोजीशन लिया है. ओके, तो इसको हम लिख देते हैं XBA. क्या लिख सकते हैं हमें? XBA. So what is the meaning of XBA? XA means what? Position of A with respect to origin. XB means what? Position of B with respect to origin. So write down XA, position of A with respect to origin. What is the XB? Position of B with respect to origin. And what is XBA? Position of B with respect to A. ऐसा लिख सकते हैं हम, position of B with respect to A. Okay, that is a standard method to write. If you write XBA, then position, X means position. Whatever you write the first, that is the position of this object, and you write the second here, that is with respect to it. Okay, so if you write like this, X AB, what is the meaning of this? Position of A with respect to B. इसका मीनिंग कुछ ऐसा होता है. ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह से लिखना सीख लेना. What is the meaning of XAB? That is a position of A with respect to B. So if you count this situation, if you consider this situation, can you write this equation like this? XB is equal to XA plus XBA. Yes or no? From the figure, what you write from figure? XB is equal to XA plus XBA. इसमें से XBA काउंट करो. So XBA is equal to XB minus XA. Yes or no? XBA is equal to XB minus XA. So आप इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, मतलब इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर. ओके, फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट्स. मीन्स वॉट एवर यहाँ पे फर्स्ट क्या है B है तो B यहाँ पे लिखो, सेकंड क्या है यहाँ A है तो यहाँ पे A लिखो. मतलब कि फर्स्ट में से सेकंड को सबसेट करो, फर्स्ट में से सेकंड को सबसेट करो. वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो XBA इज इक्वल टू पोजिशन ऑफ B माइनस पोजिशन ऑफ A. दैट इज अ वेक्टर फॉर्म. ओके, सो हियर वी कैन से दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ B with respect to A. आप ऐसा लिख सकते हो. If you want a velocity, then what you are doing here? See, अगर आपको velocity चाहिए तो velocity यहाँ पे लिख दो. चलो, so velocity कैसे? Velocity means differentiation of this equation. Yes or no? Differentiation of this equation is velocity. So V is generally written as a dx by dt. So write down this one. So VBA is equal to dxBA by dt is equal to dxB by dt minus dxa by dt. It means VBA is equal to VB minus VA. You get the same answer. See, means you get the similar answer. That is the velocity of B with respect to A. आप ऐसा लिख सकते हो. अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो फिर सो एक्सेलरेशन मीन्स व्हाट? एक्चुअली एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt. तो आप इसका डिफरेंशिएशन करो तो एक्सेलरेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A इज इक्वल टू dvBA बाई dt. इसका मीनिंग क्या हुआ? dvB बाई dt माइनस dva by dt. So you just put the value. So acceleration of B with respect to A is equal to acceleration of B
minus acceleration of a. So this is our answer. Okay, means this is the relative concept. If you want to solve some problem, then use this all this relation. Okay, here what is xba? Xba means position of b with respect to a. What is xb? Position of b with respect to origin. What is xa? Position of a with respect to origin. And similar on this vba, aba. If you write the same relation in this way, see, suppose you want to write down position of a with respect to b, then what you have to write here? Then you just write किसकी पोजीशन चाहिए, ए की, तो ये यहाँ पे फर्स्ट रखो, विथ रिस्पेक्ट टू कौन है, बी, तो यहाँ पे वो सेकंड रखो, ऐसा ही लिखना है, ठीक है। और फर्स्ट में से सेकंड को सब्सट्रैक्ट करो, तो फिर हो जाएगा एक्स ए माइनस एक्स बी। सिमिलर आपको अगर ए चाहिए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या करना है, आपको यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए किसकी चाहिए, ए की, तो ये ए फर्स्ट रखो, किस विथ रिस्पेक्ट टू बी चाहिए तो बी सेकेंड रखो, तो फर्स्ट में से सेकेंड को सब्सट्रैक्ट करो, सो वी ए माइनस वी बी, आप ऐसे लिख सकते हो। और सिमिलरली एक्सेलरेशन चाहिए तो सो थर्ड वन, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, अगर ये चाहिए तो then you just use the similar method. So acceleration of a with respect to b, फर्स्ट में से सेकंड को सब्सट्रैक्ट करो, तो acceleration of a minus acceleration of b, आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। So that is the first note. All of you guys must be write this full topic in your books. Okay, first note this one, not it. Now if you consider only one dimension, what about three dimension? So three dimension same equation आप यूज कर सकते, देखो, in case of three dimension you just write position of a with respect to b. अगर आपको पोजीशन लिखने तो कैसे लिखने, देखो, r a b, r is a position vector of a. Okay, so r a b is equal to r a minus r b in vector form, in vector form. Similar way, if you have to write down the velocity of a with respect to b, then use the same relation, vab is equal to va minus vb, where what is v actually? So in three dimension, va is written as a dra by dt, and what is vb? vb is a drb by dt, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। सिमिलर फॉर एक्सेलरेशन, व्हाट यू हैव टू राइट, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इन थ्री डायमेंशन, इन थ्री डायमेंशन, तो फिर आंसर क्या होगा, देखो, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, सो ए बी इज इक्वल टू ए माइनस ए बी। यहाँ पे एक ए क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए हो जाएगा dva by dt, and acceleration of b क्या हो जाएगा, dvb by dt. Okay, so in this way you just write some of the answer in three dimension. So the same rule is applied for the three dimension also. Okay, all of you guys note this in your books properly. Okay, now one another case, if you just want to apply the constant accelerating motion, relative motion, can you apply? Then answer is what, yes. So let's we write this one special note, equation of motion in case of relative motion. अगर आपके पास रिलेटिव मोशन है तो भी आप इक्वेशन यूज कर सकते हो। पहले हम ओरिजिनल इक्वेशन लिख देते हैं। यहाँ पे ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, ओके, x माइनस एक्स जीरो इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस वी जीरो स्क्वेयर अपॉन 2a, and the last one x minus x naught is equal to v plus v naught upon 2 into t. Now you just write this whole equation in terms of relative motion. Then how you write this? See, you just write first relation like this, v relative
इज इक्वल टू वी नॉट रिलेटिव प्लस ए रिलेटिव इंटू टी। आप ऐसे इस इक्वेशन को रिलेटिव मोशन में भी यूज़ कर सकते हो। सेकेंड इक्वेशन को कैसे लिखना है, देखो एक्स रिलेटिव माइनस एक्स नॉट रिलेटिव इज इक्वल टू वी नॉट रिलेटिव इंटू टी प्लस 1/2 ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। सिमिलरली ए भी लिख सकते हो और ए भी लिख सकते हो, तो ये आप अपने आप होमवर्क में लिख देना, ठीक है। तो फिर यहाँ पे v की जगह पे v रिलेटिव रखना, कैसे फाइंड करना है वो तो हम एग्जाम्पल थ्रू नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू गाइस नोट दिस प्रॉपर्ली इन योर बुक्स, देन आफ्टर वी आर गो टू दिस नेक्स्ट वन, नोट इट, ओके। लेट्स सी, सो दैट इज द फर्स्ट वन, वेक्टर मेथड। लेट्स वी सॉल्व वन एग्जाम्पल फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग। So example number 1. So here this question is what? Find velocity of A with respect to B, and the figure is given to us. This type of figure is given here. See, here is the objects A, here is the objects B. इसकी velocity है 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी velocity है 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। इस तरह के फिगर दिए। सो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? सो व्हेन यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम विथ इन केस ऑफ दिस वन, व्हाट वी हैव टू फाइंडिंग आउट वेलोसिटी। किसकी फाइंड करनी है? ए की। किसकी रिस्पेक्ट में? बी की। मतलब आपको फाइंड क्या करना है? वी ए बी इज इक्वल टू, आपको ए फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी फाइंड करना है। तो क्या करना है? किसी भी डायरेक्शन पहले चूज कर लो। सपोज ये डायरेक्शन एक्स है, ये डायरेक्शन कौन सी है? एक्स। तो पहले डेटा लिख लो। सो वी है वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड कितना है? 10। डायरेक्शन कौन से? एक्स। एक्स डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से, तो 10 आई मीटर पर सेकेंड। वी बी क्या हो जाएगा? सो वी बी इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड कितना है? 5। कौन से डायरेक्शन में है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वी बी? प्लस एक्स। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ वी बी? प्लस एक्स। सो यहाँ पे लिख दो 5 प्लस एक्स मतलब आई मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? वी ए बी इज इक्वल टू, फर्स्ट में से सेकेंड को सब्सट्रैक्ट करो, सो वी ए माइनस वी बी। फर्स्ट में से सेकेंड को सब्सट्रैक्ट करो तो वी ए माइनस वी बी। आंसर क्या हो जाएगा? देखो 10 माइनस 5, 10 माइनस 5, डायरेक्शन कौन सी रहेगी? आई, मतलब कि 5 आई मीटर पर सेकेंड। उसका मीनिंग ये हुआ कि एस वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कौन सी डायरेक्शन में होगी? प्लस एक्स की डायरेक्शन में। सिमिलरली इन द सेम केस इफ यू वांट द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, अगर ए फाइंड करना है तो क्या करना होगा? वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। तो वी बी क्या है? देखो 5 आई है तो 5 आई, माइनस वी ए क्या है? 10 आई, तो 10। आंसर क्या हो जाएगा? -5 आई मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब ए हो गया वी ए बी, ए हो गया वी बी ए, मतलब कि बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में नेगेटिव एक्स में है। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इन द डायरेक्शन, इज टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स साइड, एंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स साइड। आप ऐसे यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो आप ये एग्जाम्पल नोट कर लो और इसकी डेटा याद रखना, ए वैल्यू प्लस आई है, ए वैल्यू नेगेटिव आई है, okay. Then after we write one special notes, okay. All of you guys write this, okay. Let's see one note. What you have to write? VAB is equal to VA minus VB, and what you have to write? VBA, VB is equal to VB minus VA। मतलब अगर VAB प्लस है तो VBA क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो आप कोई भी रिलेशन ऐसे लिख सकते हो, देखो एक्स ए बी इज इक्वल टू माइनस एक्स बी ए, ठीक है। मतलब कि अगर एक्स वेलोसिटी पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो है वो माइनस पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए हो जाएगा वेलोसिटी के टर्म में। सो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन लिखते हैं तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। सिमिलरली आप कोई भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप फोर्स में लिखो, चलो। सो आप ऐसा लिखते हो, अगर फोर्स ए बी तो फिर
फोर्स बी ए लिखते हो तो आगे क्या आ जाएगा माइनस, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, ये हम 12th स्टैंडर्ड में यूज़ करने वाले हैं, तो आप अभी याद रखना। मतलब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी है रिलेटिव कंसेप्ट ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, so all of you guys note this, then after we are go to the scalar method, that is a vector method, then after we just studied about the scalar method, note it. Let's see next one, second one, scalar method. ओके, स्केलर मेथड में आपको रूल्स फॉलो करने। सो रूल नंबर वन, चूज रेफरेंस फ्रेम। चूज रेफरेंस मतलब आपके जो भी आपके पास सिचुएशन है उसमें रेफरेंस फ्रेम चूज करने। लेकिन कहाँ पे चूज करनी है, वही क्वेश्चन है, कहाँ पे रेफरेंस फ्रेम चूज करने। सो चूज रेफरेंस फ्रेम। सो रेफरेंस फ्रेम किस ऑब्जेक्ट्स को लेनी है यहाँ पे। अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स है तो कहाँ पे आप रेफरेंस फ्रेम चूज कर सकते हो। तो फिर रूल आप ऐसा कुछ रखो, अगर आपको ए की वेलोसिटी चाहिए तो फिर बी को आप रेस पे लेके आओ, और बी की वेलोसिटी चाहिए तो ए को रेस पे लेके आओ। ठीक है, मतलब कि जिसकी भी वेलोसिटी मतलब जिसका भी डेटा आपको चाहिए उसको रेफरेंस फ्रेम नहीं देना, उसके अलावा जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है उसको रेफरेंस फ्रेम देनी है। ठीक है, सो चूज रेफरेंस फ्रेम इन सच अ वे so that the objects, but which objects यहाँ पे आपको अगर ए की वेलोसिटी चाहिए तो फिर बी को रेफरेंस में मतलब बी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, और बी की वेलोसिटी चाहिए तो फिर ए ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है, सो चूज द ऑब्जेक्ट्स इन सच अ वे सो दैट ऑब्जेक्ट्स कम्स टू रेस्ट मतलब कि आपने उसको रेफरेंस फ्रेम में सिलेक्ट किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्स टू रेस्ट, इट्स आपने उसको रेफरेंस फ्रेम में सिलेक्ट किया। सेकेंड रूल मतलब यहाँ पे रूल फॉलो करने और कुछ नहीं करना। ठीक है, फर्स्ट में क्या करना है, चूज द रेफरेंस फ्रेम। कौन सा ऑब्जेक्ट रेफरेंस फ्रेम में लेना है, जिसका आपको डेटा नहीं चाहिए। ठीक है, सेकेंड वन, गिव द वेलोसिटी एक्सेलरेशन टू द अदर ऑब्जेक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब जिसको भी आपने रेफरेंस फ्रेम चूज किया उसकी वेलोसिटी या फिर उसका एक्सेलरेशन है, जो भी अदर ऑब्जेक्ट्स है उसको अपोजिट डायरेक्शन देना। कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, यू मस्ट बी अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। लेट्स सी सॉल्व वन एग्जांपल सो योर आइडिया विल बी क्लियर। हियर जस्ट क्वेश्चन इज दिस वन, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। आपको ये फाइंड करना है और आपके पास ऐसी कुछ फिगर है, ए बी 5 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड, आपके पास ऐसी फिगर है। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट ओ ऑब्जर्व करो, आपको फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ ए। क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ ए। मतलब ए क्या डेटा आपको चाहिए तो फिर ए को रेफरेंस फ्रेम नहीं देनी है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब कि बी के रिस्पेक्ट में चाहिए तो और आप इस यहाँ पे बी को रेफरेंस फ्रेम दे दो। चलो तो बी को ऐसे रेफरेंस फ्रेम दे दी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंस फ्रेम, मतलब वो रेस पे आ गया। ओके, नाउ फर्स्ट रूल इज व्हाट, चूज द रेफरेंस फ्रेम। तो यहाँ पे हमने बी पर रेफरेंस फ्रेम चूज की। कैसे, फिर से बोलता हूँ, अगर आपको वेलोसिटी ऑफ ए चाहिए तो फिर ए के अलावा जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसको रेफरेंस फ्रेम देनी है। अगर आप वेलोसिटी बी चाहिए तो फिर ए को रेफरेंस फ्रेम देनी। ठीक है, मतलब जिसका डेटा चाहिए उसको रेफरेंस फ्रेम नहीं देनी। यहाँ पे ए का डेटा चाहिए आपको वेलोसिटी ऑफ ए तो फिर ए को ऐसे ही रहने दो। ठीक है, और बी को रेफरेंस फ्रेम दे दो, मतलब ऐसे करके रेफरेंस फ्रेम दे दी। ओके, नाउ सेकेंड रूल इज व्हाट, गिव्स द वेलोसिटी एक्सेलरेशन एवरीथिंग टू द अदर ऑब्जेक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। और बी, इस केस में बी की डायरेक्शन कौन सी, राइट हैंड साइड है। देखो तो फिर ए वेलोसिटी जो भी है कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, और किसको दे देनी है, ए को देनी है। किसको देनी है, ए को देनी है। तो फिर इस और कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट। यहाँ पे राइट हैंड साइड है तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देनी। ठीक है, कितनी देनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। अभी ए के पास दो वेलोसिटी है, इट्स फर्स्ट वन इज इट्स ओन वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एंड सेकेंड वन इज द वेलोसिटी ऑफ बी। नाउ व्हाट इज द आंसर, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू 5 माइनस 10। आप कोई भी डायरेक्शन चूज को, इसको आप प्लस ले लो पॉजिटिव, तो फिर ए क्या हो जाएगी
नेगेटिव, आप अपने आप चूज कर सकते हो, ठीक है। किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, किसी भी एक डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो। तो फिर एक के पास 2 वेलोसिटी, एक है 5, सेकेंड वन इज ए 10, सो व्हाट इज द आंसर -5 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज टूवर्ड्स द नेगेटिव साइड, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कहाँ पे, नेगेटिव साइड में, ठीक है। तो एक एग्जांपल लिख लो, उसके बाद सेकेंड एग्जांपल सॉल्व करते हैं, नोट इट। लेट्स सी एग्जांपल नंबर 2, second example, find acceleration of A with respect to B, और फिगर आपके पास कुछ ऐसी है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑब्जेक्ट्स ए ऑब्जेक्ट्स बी, ठीक है। ओके चलो, रूल नंबर 1, चूज द रेफरेंस फ्रेम। किसका एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन ए चाहिए, मतलब बी अपना रेफरेंस फ्रेम हो गया। विच वन इज चूज एज अ रेफरेंस फ्रेम, बी। वाई, क्योंकि ए का डेटा आपको चाहिए तो उसको रेफरेंस फ्रेम नहीं देनी, तो बी को रेफरेंस फ्रेम दे दो। चलो रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम मीन्स व्हाट, वो रेस पे आ गया, रेफरेंस फ्रेम मीन्स व्हाट, और रेस पे आ गया, ठीक है। चलो उस सेकेंड रूल नंबर 2, उसका एक्सेलरेशन है वो ए को दे दो अपोजिट डायरेक्शन में। अभी कौन सी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, देखो नेगेटिव साइड है, आप कोई भी डायरेक्शन को पॉजिटिव, चलो ये डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो फिर बी का एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन, नेगेटिव साइड है, तो ए को कौन सी डायरेक्शन में वो देना है, पॉजिटिव में। तो वो एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे एक और एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर फिर क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू 1 कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव में, 2 भी कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव में, तो 1 + 2 आंसर कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हो, वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर सकते हो। एवरीथिंग यू जस्ट गेट बाय द यूजिंग ऑफ स्केलर मेथड आल्सो, ओके। ऑल ऑफ यू गाइस नोट दिस, देन आफ्टर वी आर गो टू दिस नेक्स्ट वन, नोट इट। So when you use the scalar method, you just choose a reference frame in such a way so that another object is comes to rest, so that another object is comes to rest, and second one give the velocity and acceleration to the other objects in opposite direction, मतलब उसकी जो भी डायरेक्शन है उसको अपोजिट करके और वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो कुछ भी है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट्स को दे दो, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन कर सकते हो, ओके। ऑल ऑफ यू गाइस नोट दिस, देन आफ्टर वी आर गो टू दिस नेक्स्ट वन।